Uh, respected learned speaker of today's program, Sumit Bagadia ji. Respected Chairman CIRC, CA Nilesh Gupta ji. Respected Vice Chairman of CIRC, CA Atul Agarwal ji. Secretary CIRC, my elder brother, CA Shashikant Chandrakar ji. Today, chief guest, respected NIRC Chairman CA Avinash Gupta. स्वागत है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे साथ हमारे 5 चेयरमैन हरीश चौधरी जी भी हैं। वेलकम हरीश चौधरी जी। वेलकम सर। वेलकम जी अपने चेयरमैन। respected member executive Udaipur branch Hitesh Badada ji, and all my viewers of this virtual meeting on this 5th day of 9th day series of virtual CP meeting on capital market and crypto Outlook 2022. Very good evening to all of you. We at CIRC level always trying to do some different program for our members, and for that we have planned this series of VCM on a new year gift to our members of CIRC. Even we can say rather I can say entire country, because members of other regions have also joined. Since we have with us Honorable Chairman CIRC, CA Nilesh Gupta ji. So without taking much of your time, I invite CA Nilesh Gupta ji for his opening remarks. Over to you, Nilesh sir. Thank you, Somani ji. Very respected today's chief guest, my brother and my council colleague, CA Avinash Gupta ji, Chairman, Northern India Regional Council of ICI. Past Chairman of NIRC, Harish Chaudhary ji. स्वागत है सर आपका NIRC की पूरी टीम के साथ CIRC के प्रोग्राम में. Respected today's learned speaker Sumit Bagadia ji, a very learned and eminent personality and very learned person on the stock market. My elder brother and immediate past chairman Devendra Kumar Somani ji, secretary sir Shashikant Chandrakar ji, and of course vice chairman of CIRC Atul Agarwal ji, and CA Hitesh Badada ji, the managing committee member from Udaipur branch, and very respected all the viewers of this 5th day virtual meeting on Outlook on capital market and cryptocurrency. So आज हमारे साथ हमारे गेस्ट NIRC से हैं. So without taking much of time, बस इतना सा कहना चाहूंगा अविनाश जी कि हमने 1 जनवरी से ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग हमारे यहाँ पर सभी तरह के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर पे जो इंडिया की जो एक्सपर्ट पर्सनालिटीज हैं, टॉप पर्सनालिटीज हैं, उनको इनवाइट करने का प्रयास किया. आज हमारे साथ सुमित भाई हैं, और इसके पहले भी 4 दिन हमारे साथ एमिनेंट स्पीकर्स थे. Also we have covered cryptocurrencies in this series because क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता जा ही रहा है, और एक इन्वेस्टर जो होता है वो सबसे पहले उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही आता है कि साहब ये मैंने कर दिया है, अब क्या करना है, या मैं करने वाला हूँ तो मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए. तो वो टैक्सेशन और अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स के बारे में तो बाद में पूछता है, पहले ही पूछता है कि साहब आप क्या कर रहे हो, और ये क्या होता है, क्या ये क्रिप्टो क्या है, NFT क्या है, एक्सचेंज क्या है, मेटावर्स क्या है, बहुत सारी चीजें वो पूछता है. तो वी फेल्ट के हमको हमारे मेंबर्स को इनिशियल इसके बारे में नॉलेज से अपडेट करना चाहिए. तो वी कवर्ड क्रिप्टो करेंसी एज वेल इन दिस सीरीज. सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम, आई वेलकम team NIRC headed by the Avinash Gupta ji and all the viewers to this 5th day of virtual program on capital market and crypto. Thank you very much. Thank you, Nilesh ji. Since we have with us our honorable chairman of NIRC, Avinash Gupta ji, and as a chief guest, and Harish Chaudhary ji, immediate past chairman of NIRC. So first I request Harish Chaudhary ji to say few words. थैंक यू सर. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं
चेयरमैन जरूर NIRC का रहा, बाकी आई बिलोंग टू भिलवाड़ा और मेरा नेटिव प्लेस, मेरे पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं, तो मेरे को इतनी खुशी है कि मतलब मैं वास्तव में, मेरा आज भी दिल वहीं है, और ठीक है फिजिकली दिल्ली में हूँ मैं, और सब कुछ है, और इतना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबने मेरे को मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप कर रहे हैं, आप जो जिस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, आप मेरी शुभकामनाएं। और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे अविनाश जी हमारे डायनेमिक चेयरमैन हमारे हैं बीच है, तो मैं चाहूंगा कि उनको ज्यादा सुना जाए, इस सब्जेक्ट पे भी थोड़ा बोलेंगे, तो प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर, थैंक यू। Thank you, Avinash ji. Now I request today's chief guest, Avinash Gupta ji, for his chief guest address. Thank you, Somani Saab. Respected chairman of CIRC and my brother Nilesh ji, past chairman of CIRC Devendra Somani ji, past chairman of NIRC with me Harish Chaudhary ji, our my brother from Raipur Shashikant ji, Atul Agarwal ji, my brother again very close to me, Atul Agarwal ji, vice chairman of CIRC, and respected speaker of the day. It is a great privilege to be here in this 9-day series organized by CIRC, and I can tell you, I am not happy with the CIRC chairman. Why I am not happy with the CIRC chairman? That they are organizing this 9-day series alone. I request sir that for the next few days, whatever is left, please send a invite to us. We will send to our members also. Let our members should also be benefited with the great efforts put in by Nilesh ji. And this year, I can tell you, whenever I call Nilesh ji, he always say yes. He do not have no. मैंने कहा Nilesh ji ये करना है sir, ये करना है. And this is really wonderful working with Nilesh ji in this year. Very dynamic person, very dynamic chairman of CIRC. I must appraise, I must applaud for his tenure, and I request Nilesh ji that for the remaining period, let NIRC members should also join this very good initiative. As the matter as the topic of the 9-day series is stock market, and we all know that during the lockdown period, many people have started investing in the stock market. This is also witnessed by all of us in the returns that we have filed just now for individuals. Those people who have never traded in the stock market, never done any transaction, now there is a long list of trades that they have happened. And our institute also have allowed all the practicing chartered accountants to do F&O along with the practice also. So that's why this topic is very important and very interesting also. But it is not merely gamble. There is a lot of scientific research which is required. There are a lot of financial research which is required before investing into any stock or any F&O transaction. And I believe with these series of 9 programs what CIRC has done, it will be a great learning for all the people that they will gain at least to understand the technical analysis and other parts of the stock market. I wish all the best to the organizers, that is CIRC, and all the best for the viewers of this entire 9-day series, about that they will get good amount of food for their thoughts, and happy learning to all of you. So thank you very much for inviting me to this program as a chief guest. But I am also gaining out of it, and I know that my members from tomorrow onward, they will also gain out of the very good efforts put in by CIRC and the office bearer for this. Wherever you need any support from NIRC, we are always there. Though Corona have come, we have planned a joint cricket tournament between NIRC and CIRC, but due to Corona, we have to cancel it, or not cancel it, we have to postpone it. Let's see whether we can do it till 28th February or not. But we are always available to the members, to the CIRC, whenever they want. And my chairman, my past chairman, or my chairman, because he is the chairman in the first year, so I always greet him as chairman. He is also from, and I have visited, Chairman sir, I have visited your 95% branches of CIRC. So that's why I am also very well versed with your CIRC region. So that's how it is going on. So all the best. Thank you very much. Thank you for inviting me.
Thank Thank you, you, Avinash ji. Avinash First sir. of all, we felt that NIRC should be part of this program. That's why we requested you to join today's program. And definitely from tomorrow onwards, the NIRC members will also be the part of this program. And this series is planned by our immediate past chairman, Devinder Kumar Somani ji. So under his experienced learning, हम सब ये प्रोग्राम देख पा रहे हैं और आई एम श्योर के कल से हम सब मतलब वैसे तो ये सब प्रोग्राम सभी के लिए है लेकिन ऑफिशियली इट विल बी द प्रोग्राम ऑफ CIRC एंड NIRC फ्रॉम टुमारो itself from today itself. Thank you so much for coming and giving your patience. The Chairman program sir. will remain with CIRC. सर और सोमानी जी के बारे में chairman- तो सर बहुत सारे WhatsApp सुने। अविनाश सर, सोमानी जी की आपको तो बता सर वो WhatsApp की कहानी। जी सर। सर मैं आपको बता दूं सर, इसमें जो मेंबर ज्वाइन किए हुए हैं वो NIRC के भी हैं, SIRC के भी हैं और इवन अक्रॉस द कंट्री भी हैं। Yeah, हमारे WIRC भी है सर, just got a message. yes sir. और हम तो दोनों को रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। This is the beauty of virtual world. This is the beauty of virtual world that that member from every corner of this world is joined and can join. Welcome from WIRC member also. Please go ahead, Devinder Kumar Somani ji. Sir, so sir, since we have with us our respected speaker, learned speaker Sumit Bagadia ji, he known for his Sumit के सुपर हिट शेयर। बिल्कुल सर, जी बिजनेस में इनके शेयर्स जो आते हैं वो आते हैं सुमित के सुपर हिट शेयर। अभी हमने परसों हमारे साथ थे संदीप जैन सर, उनके शेयर आते हैं, जैन साहब के जेम्स। कल हमारे साथ थे अजय बग्गा जी, उनके शेयर आते हैं हमारे पास AB ऑफ ग्लोबल मार्केट। सो वी आर ट्राइंग कि हर तरह के और अलग अलग जो मेंबर्स हमारे हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, इनको हम लेके आए और हमारे मेंबर सबको सुने, उसके बाद अकॉर्डिंगली खुद और अपने क्लाइंट्स का जो भी इन्वेस्टमेंट करना है और 2022 उनके लिए प्रॉफिटेबल हो, उसके लिए हमने ये प्रयास किया है। नाउ आई विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, बिकॉज सिंस अवर व्यूअर्स आर ईगर टू लिसन सुमित जी, so I request, though he need not any introduction, but parampara hai, so I request our branch executive member of Udaipur, Hitesh Vadada ji, for his formal introduction. Over to you, Hitesh ji. Thank you, Somani sir. Very good evening to everyone. Chairman CIRC, Vice Chairman sir, Chairman NIRC Avinash Gupta, and Speaker of the day Sumit Bagadia ji. Mr. Sumit Bagadia is MBA in Finance by profession and has experience of 15+ years in broking industry. Mr. Bagadia is sought by print and write wire services on a regular basis for his views and comments on equities, commodities as well as currencies market. He started his career with one of the leading broking firms in India, Sher Khan. Since then, he is involved in markets and played a key role in setting up the desk at few brokerage houses. With a quality experience and sound knowledge, Sumit ji has good grip on markets. Presently, he is executive director at Choice Broking. He is regularly giving technical view on equities, commodities, and currencies from past 10+ years in electronic media like CNBC Awaaz, ET Now, CNBC Bazaar, Bloomberg, Zee Business, NDTV Profit, etc. Also, he has given various type of articles in print media like Economic Times, Afternoon, Navara Times, Business Standard, Financial Chronicle, DNA, etc. With these words, I present Mr. Sumit Bagadia for his fruitful presentation to all the viewers. Thank you, Chairman sir. Thank you, Hitesh ji. Now I request our learned Hello. speaker. Over to you, sir, Sumit ji. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर। मेरी
हितेश जी आवाज आ रही है ना? फाइन। सबसे पहले तो सभी को मेरा ये आवाज को जी, म्यूट आवाज आ कर रही है ना? दीजिए। सर आपकी आवाज आ किसको? रही है, आपका जो सेकंड सिस्टम है उसका आवाज म्यूट कर दीजिए आप। हाँ, उसका मैंने म्यूट कर म्यूट दिया भी है कर और दीजिए, उसका मोबाइल वाला वॉइस जो सिस्टम आने को वाला ऑन है है। उसको करना बंद कर पड़ेगा दीजिए। आपको उसका वॉल्यूम ऑफ करना पड़ेगा। वॉल्यूम भी ऑफ करिए। सर आपके मोबाइल को अनम्यूट करिए। सर मोबाइल अनम्यूट करिए आप। या अब सही है? परफेक्ट सर। ओके फाइन। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। हितेश जी, नीलेश जी, सोमानी जी और बाकी और भी जितने डिग्नेटरीज हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीआईआरसी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मैं आपके प्लेटफॉर्म पे अभी लाइव सेशन के लिए तैयार हूँ। और सभी पैनलिस्ट से और आप सभी लोगों से सबसे पहले तो एक माफी मांगना चाहूंगा कि आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा प्लीज बेयर कीजिएगा मेरे साथ। बट मैं ट्राई करूंगा कि जितनी देर मैं आप लोग के साथ रहूं सर मैं उतनी सभी देर। चाहूंगा कि हमारे स्पीकर सर का कल काफी गला खराब था, फिर भी इन्होंने कहा मैं कैसे भी करके कोशिश करूंगा कि सर आपको प्रेजेंटेशन दे पाऊं, तो इसके लिए आपको सॉरी की नहीं सर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद आपने चूंकि कमिटमेंट किया है उसके लिए आप हमारे व्यूअर्स के साथ प्रेजेंट है। तो सर हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्पाइट ऑफ योर बैड हेल्थ यू हैव जॉइंड अस। थैंक यू सर। सुमित जी प्लीज कैरी ऑन। मैं मिस नहीं करना चाहता था ये सेशन। मैं चाहता हूं कि अगले आधे एक घंटा जितनी देर भी मैं आप लोग के साथ रहूं उसके अंदर एक क्वालिटी डिस्कशन हम लोग करें और एक ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की मैं कोशिश करूं। तो एक बार सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अभी अवेलेबल है, मुझे पता नहीं क्यों मार्केट्स में काम करते हैं नहीं करते हैं, प्रेशर है या मार्केट्स के अंदर वो लोग इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि सब स्टार्ट से मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, मार्केट के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं और मार्केट को समझना चाहते हैं। और जो लोग मार्केट को समझते हैं उनके लिए भी मैं लाइव स्क्रीन शेयर करूंगा चार्ट्स की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चार्ट्स के अंदर मोमेंटम आता है, कैसे चार्ट्स के अंदर स्टॉक मूव है और कैसे हमें मार्केट्स के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। वेल सबसे पहले तो मार्केट्स के अंदर जो लोग आना चाहते हैं या जो है इन सब के लिए जानने के लिए जरूरी है कि तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट्स के अंदर। एक, कि आपको फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए। सो बीइंग ए सीए ये नॉलेज आप सभी में है और ये सभी में बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट होता है। दूसरा, टेक्निकल नॉलेज जो हमको सीखना होता है और जब हम सीखेंगे तो हमको मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स का पता चलेगा। और तीसरा, शेयर मार्केट के अंदर आने के लिए, काम करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पैसा। तो अगर पैसा आपके पास है तो बाकी की दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। अगर ये तीनों चीजों का अगर मिश्रण बन जाता है तो मार्केट से पैसा कमाना कुछ हद तक या बहुत हद तक इजी हो जाता है एंड यू कैन मेक मनी इजीली इन द मार्केट्स। आवाज आ रही है ना मेरी? ओके। सो कुछ हद तक या बहुत हद तक मार्केट से पैसा कमाना बहुत इजी हो जाता है। नाउ बीइंग अ सीए, फंडामेंटल्स के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल्स आप बैलेंस शीट के जरिए, बुक्स के जरिए
आप सब कुछ पता कर सकते हैं अकाउंट्स के जरिए या कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए आप अच्छे से पता कर सकते हैं कि क्या है। पैसा आपके पास है, किसी चीज दैट इज टेक्निकल्स। सो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा। इस स्क्रीन के अंदर आपको देखने मिलेगा कि चार्ट्स के अंदर कैसे मूव आता है, कैसे चार्ट्स का बेनिफिट हम ले सकते हैं। सब दे रही है का चार्ट है। इस निफ्टी के चार्ट के अंदर अब देखिए लास्ट जैसे अभी पास्ट चेयरमैन ने कहा था कि लास्ट 1-1.5 करोड़ जो बिजनेस सबसे उभर के आया है दैट इज स्टॉक मार्केट। अगर आप लोगों ने देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर जितने अकाउंट्स ओपन हुए हैं वो पिछले 10 सालों के अंदर या 20 सालों के अंदर भी ओपन नहीं हुए हैं। एट प्रेजेंट 7 से 8 करोड़ अकाउंट शेयर मार्केट के अंदर आ चुके हैं, जो 80% अकाउंट्स इस लास्ट कोरोना पीरियड में यानी 1.5 से 2 साल के अंदर खुले हैं। इस पीरियड के अंदर लोगों को ये समझ में आ गया कि मार्केट्स के अंदर घर बैठे बैठे भी आप काम कर सकते हैं। कोई और बिजनेस अगर नहीं चल रहा है तो ये बिजनेस, इसको अगर आप एज ए बिजनेस ट्रीट करेंगे तो ये बिजनेस आपको फ्रूटफुल इनकम देगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस कोरोना पीरियड के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स के अंदर हमने एक ट्रिमेंडस रैली देखी है, जहां पे इंडेक्स के अंदर 7,500 के आसपास के लोअर लेवल्स हमने देखे थे, और वहां से एक वन वे रैली पिछले 1.5 साल में देखी है जहां पे हमने 18,000 प्लस के लेवल इंडेक्स में देख लिए। यानी जहां पे लोग, पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि सब कुछ कोरोना में कुछ नहीं बचेगा, वहां पे स्टॉक मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया है और एक वन वे रैली दी है। अब ऐसे टाइम पे भारत भी मार्केट की है, तो ये चीजों को समझने के लिए चार्ट्स एक बहुत मेजर और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डे टू डे ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म व्यू लेने के लिए फंडल के साथ साथ ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टेक्निकल्स के अंदर आप लोगों को ये पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक कब कहां पे पॉज लेता है, कब कहां पे ब्रेक मिलता है। सिर्फ फंडामेंटल हमको एक पाथ दिखाता है जहां पे हमको एक डायरेक्शन मिलती है कि हमको स्ट्रेट जाना है। टेक्निकल हमको ये समझाता है कि हमको रुकना कहां पे है, स्पीड ब्रेकर कहां पे आएगा, यू टर्न कहां पे लेना है, पॉज कहां पे लेना है। टेक्निकल्स के अंदर फ्रेश बाइंग कहां पे करनी है, डे टू डे ट्रेडिंग हो, भी तरह की चीजों के लिए टेक्निकल आज की डेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप लोगों ने अगर हमको टीवी पे भी देखा होगा तो व्हेन वी गिव मोमेंटम ट्रेडिंग कॉल्स वी गिव विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल चार्ट्स। सो इसी को समझने के लिए ये एक चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर आप देखिए, ये जो पैच है, ये वाला जो पैच है, अगर आप लोगों को याद होगा कोरोना का लॉकडाउन, कोविड में लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ था वो कौन सी डेट से हुआ था, आपको देखिए मैं बताता हूं किस तरह से मार्केट्स ने उस डेट के बाद क्या किया है। ये है 23 मार्च 2020, लो है 7,583, 7583.60। 24 मार्च 2020 511.10। सो जिस दिन लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, जिस दिन से पूरा मोमेंट इंडिया में रुक गया, उसी दिन से शेयर मार्केट ने बॉटम बनाया और यहां से रैली का शुरुआत हुआ। यहाँ पे प्रिडिक्ट करना इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि ये बॉटम बनेगा, बट चार्ट्स में अगर कुछ दिन निकले, यहाँ से मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमको एक समझ में आने लग गया कि ये हायर लो फॉर्मेशन में जाने को तैयार हुआ। आप देखिए ये लो लगा, उसके बाद ये नेक्स्ट लो लगा 3 अप्रैल 2020 को, उसके बाद ऊपर गया,
फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ इस मोड के अंदर, फिर वापस से नया लो लगा 15 मई 2020 को, जो कि करीब करीब 8855। फिर यहां से हमने वापस से एक वन वे रैली देखी, जिसके अंदर हमने ऊपर में 8 जून तक 10,300 के हाई देखे, फिर वापस छोटा सा करेक्शन आया, फिर वापस रैली देखी। ये देखते हुए ये पता चलेगा आपको कि 23-24 मार्च 2020 से ये जो रैली चल रही है, ये पॉज ली सितंबर 2020 के आसपास, 11 के आसपास, 11,700 के आसपास कंसोलिडेशन किया करीब करीब 1 से 2 महीने के लिए। फिर एक छोटा सा करेक्शन आया 1001 पॉइंट का, जिसका लो लगा 10,790, हम ऊपर की तरफ देखने को मिली। ये वो फेज है, ये जो लो लगा, आप देखिए चार्ट्स के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि हर लो के बाद नया हाई बन रहा है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, फिर छोटी सी करेक्शन आती, फिर वापस से नया हाई, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन। ये अप्रैल 2021 का बात चल रहा है, जब सेकंड वेव आया उस टाइम पे देखिए 1.5 से 2 महीना स्टॉक मार्केट ने कंसोलिडेट किया, अप्रैल और मई। ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर जो हाई लगा 15,300 के आसपास, और जो लो लगा वो 14,000 के आसपास या 13,700 के आसपास। ये कंसोलिडेशन फेज जैसे ही खत्म हुआ, तो ये लास्ट के 3 महीने जो फाइनल अभी आए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीने के अंदर हमने ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन देख लिया है, और वहां से फिर एक वापस से अपवर्ड मूव का शुरुआत हुआ है। ये जो करेक्शन आया, इसके अंदर मेजर लोगों ने सोचा कि ये टॉप बन गया और यहाँ से एक बड़ी मंदी आएगी, बट नहीं, 10 से 12% का करेक्शन हमने इंडेक्स में देखा, और वहां से वापस से एक रैली का शुरुआत हो गया, जिसके अंदर हमने अभी आज का जो लेवल्स देखे हैं 17,925 के देखे हैं। आप देखिए पिछले 10 दिन वन वे रैली हमने मार्केट्स के अंदर देखी है, जबकि ये थर्ड वेव का वापस से शुरुआत हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब जब वेव्स का बात आया, जब जब कोविड का बात आया, तब तक मार्केट्स ने रैली स्टार्ट करी और नए लाइफ टाइम हाई लेवल्स लगे। अभी टेक्निकल चार्ट से ये समझ में आता है कि अगर आप लोगों को प्रॉपर रीडिंग है मार्केट्स की, अगर आप लोग मार्केट्स के अंदर प्रॉपर चार्ट्स को समझते हैं या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं और प्रॉपर रिपोर्ट्स या लेवल्स पढ़ के काम करते हैं, तो आप मार्केट्स के अंदर प्रॉपर टाइम पे एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे। फंडामेंटल के जरिए आपको एंट्री तो मिल जाएगी, बट एग्जिट आपको नहीं मिलेगी। एग्जिट आपको सिखाएगा ये टेक्निकल चार्ट्स, टेक्निकल लेवल्स, जहां पे आप प्रॉपर टाइम जहां पे आप प्रॉपर चार्ट्स का हेल्प लेके जहां पे आप प्रॉपर चार्ट्स का हेल्प लेके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं मार्केट्स में। नाउ अगर हम अभी के फेज का बात करें, दिस इज द लेटेस्ट चार्ट ऑफ द निफ्टी, वेयर वी कैन सी that after a correction there was some consolidation in Nifty, and today or in last 2 days we have seen that consolidation breakout also. From here on there is a possibility that we might see a rally and we might see lifetime high levels in Nifty soon. 18,600 के आसपास का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, ये रैली एक्सटेंड होगी और ऊपर का मूव हमें देखने को मिलेगा। मेरा रीडिंग ये बोलता है मार्केट्स के अंदर कि अगर कोई भी डिप आता है तो वी शुड बी इन्वेस्टर इन द मार्केट, वी शुड इन्वेस्ट इन द लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए वी शुड यूज टेक्निकल पैरामीटर्स लाइक अर्ली चार्ट, 15-minute chart, 30-minute chart, 4-hour chart, that will help you to take positions, that will help you to take now the daily chart suggests that the markets are bullish,
एंड फ्रॉम हियर ऑन गुड इंडिकेट 18,000 आर्कियोलॉजिकल लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो 18,500 से 18,600 तक के लेवल निफ्टी के अंदर मिलेंगे। तो एक बार 18,600 का लेवल तो आने वाले महीनों के अंदर हमें 20,000 से लेके 21,000 तक के लेवल इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी आप सोचिए अगर ऐसा होता है तो स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे और क्या रैली मार्केट में बन सकती है। मैं इस सेशन के जरिए आप सभी लोगों को यह भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि 250 लोग के आसपास अभी ज्वाइन कर चुके हैं, सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग मार्केट्स में काम करते हैं इसको एज ए प्रोफेशन, एज ए बिजनेस लीजिए। अगर आपका ये फुल टाइम बिजनेस है, I think some voice issue is there. Amit ji? मार्केट्स के अंदर बिना रिस्क लिए बिना काम हो ही नहीं सकता। जो मार्केट के अंदर रिस्क ले सकता है वही मार्केट से एक अच्छा पैसा बना सकता है। 7,500 8,000 में पूरी दुनिया फियर में थी। 7,500 आई होप नाउ यू कैन हियर मी। किसी ने Yes, sir, चैट yes, पे sir. लिखा है नॉट एबल टू हियर सर। आई होप यू कैन हियर मी। Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, you are here. राजशेखर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जहां पूरी दुनिया फियरफुल होती है वहां पे वी शुड टेक अ चांस, वी शुड वहां पे हमको फियरफुल जहां पे पूरी दुनिया फियर के अंदर होती है वहां पे हमको फियरफुल होकर उसके अंदर काम करना चाहिए, मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा एक बेसिक फंडा है, व्हेनेवर आई गिव अ प्रेजेंटेशन, व्हेनेवर आई स्पीक, आई ऑलवेज से टू पीपल दैट मार्केट्स के अंदर आप स्टैगर्ड वे में आइए, एक साथ अपना पैसा मत डालिए, एक साथ अपना पैसा मत डालिए, रेगुलर बेसिस में मार्केट्स के अंदर पैसा डाल के आइए और जब जब आपके पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हो आप मार्केट्स के अंदर पंपिंग कीजिए। क्योंकि अगर आप मार्केट्स में वन शॉट में पैसा डालोगे तो आपको मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स का फायदा नहीं होगा। लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे अगर मार्केट्स में पैसा डालोगे तो मार्केट्स की जो वॉलिटिलिटी है उसको आप कैप्चर कर सकते हो, मार्केट्स के अप एंड डाउन को आप कैप्चर कर सकते हो एंड हर लेवल पे आपके पास आपके पास मार्केट्स में एंट्री करने के लिए जगह रहेगी। आप कभी भी पैनिक नहीं होगे। मार्केट्स के अंदर आपका पैसा बनेगा। इफ यू गेट पैनिक आपका मार्केट्स में कभी पैसा नहीं बनेगा। जहां पूरी दुनिया फियरफुल होती है वहां पे हिम्मत दिखाना चाहिए, जहां पे सब ग्रीडी होते हैं वहां पे फियर में आना चाहिए। 18,500 पे सब 20,000 21,000 की बातें कर रहे थे, सडन सेल ऑफ आया विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक। हो सकता है मार्केट डिस्काउंट करा था उसी का करेक्शन हमने देखा। जैसे ही थर्ड वेव के सिम्टम्स दिखने लगे, सब जगह रिस्ट्रिक्शंस आने लगे, लॉकडाउन का सीन होने लगा, मार्केट्स के अंदर हमने एक वी हैव सीन अ मूव अराउंड ऑलमोस्ट 1400 to 1500 points, which is very huge and very fast। 10 दिन से 14 दिन के अंदर अगर 1400 से 1500 दिस मार्केट
अगर आपको एक बार ट्रेंड पता चलता है तो उसके बाद आपको टेक्निकल हेल्प लेना चाहिए एंट्री एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग के लिए सी व्हेनेवर वी यूज वर्ड लाइक स्टॉप लॉस सिर्फ लॉसिंग होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर आपने प्रॉपर वे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके अगर रैली को राइड किया तो आपको बड़ी रैली खाने को मिल सकती है, बड़ी रैली आपको स्टॉक्स में या इंडेक्स में मिल सकती है। जो रैली हमने लास्ट 1.5 साल में इंडेक्स में या स्टॉक्स में देखी है, such type of rallies are seen after decades। 10 साल 20 साल में एक बार ऐसा मूव आता है जब मार्केट्स इस तरह से आउट परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज ऐसा वन वे मूव जनरली मार्केट्स में देखने को नहीं मिलता है। Just a second, please. अदरवाइज ऐसा वन वे रैली मार्केट्स में देखने को नहीं मिलता है। सो बी ए पार्ट ऑफ दिस मार्केट। जो लोग मार्केट्स के ऑलरेडी पार्ट है वो लोग को पता होगा कि किस तरह से रैली मिल रही है। जो लोग नहीं पार्ट है, आस्क देम टू बी ए पार्ट ऑफ दिस मार्केट। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए पार्ट बने, अपने रिटायरमेंट या अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्लानिंग करें, क्योंकि आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट का इससे बढ़िया मोड दूसरा आपको मिलेगा नहीं। वी शुड हैव FD, we should have property or we should invest in real estate. At the same time, we should have gold and silver also. But ये सब का एक लिमिटेशन है, ये सब का एक लिमिटेशन है जिसमें we can park our money. शेयर मार्केट में there is no limitation. आप जितना पार्क करोगे, जैसे पार्क करोगे वैसे आपको रिटर्न देगा। जितना SIP मोड में आप जाओगे और जितना लॉन्गर पीरियड के लिए आप जाओगे उतना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। यू जस्ट नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजीज, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। जहां पे वॉलिटिलिटी आती है वहां पे क्या करना है, जहां पे साइडवेज होता है वहां पे क्या करना है, प्रॉफिट के अंदर क्या करना है, लॉस में क्या करना है। सी व्हेन वी आर इन अ बिजनेस, every day we cannot make money. Same way in share market, every day we cannot make money. हर रोज हमारा नहीं होगा, तो कुछ कुछ टाइम पे लॉसेस बुक करना, लॉस में निकलना समझदारी होता है। अब जैसे कि मैंने आपको निफ्टी का एग्जांपल दिया, मैं आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल देता हूं। दिस इज अ बैंक निफ्टी चार्ट। जैसे कि निफ्टी ने लो बनाया था मार्च के आसपास, लॉकडाउन के आसपास। सेम वे बैंक निफ्टी ने भी देखिए मार्च के आसपास लो बनाया। उसके बाद दिस इज अ मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली हमने एक रैली देखी, बीच में कोई 1 महीने में मंदी आई, फिर हमने वापस से तेजी देखी, 1 महीने मंदी आई, फिर 1-2 महीने कंसोलिडेशन और थोड़ा सा करेक्शन आया और वापस से हम रैली देख रहे हैं। इसी फेज के अंदर, इसी पीरियड के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स हैव आउटपरफॉर्म्ड। वी हैव सीन अ वन वे रैली इन प्राइवेट बैंकिंग एंड PSU बैंकिंग स्टॉक्स। एग्जांपल SBI, किन लेवल्स पे था SBI और आज किन लेवल्स पे आ गया है। 150-160 वाला स्टॉक, वी आर सीइंग अ वन वे रैली, 500 रुपए तक के लेवल हमको SBI में देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे कई स्टॉक्स है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, छोटे मोटे स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छा मूव हमने देखा है। तो ये चीजों से आपको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब रैली आती है तो वन वे रैली के अंदर किस तरह से स्टॉक्स चलते हैं और क्या फायदा होता है। अभी जो लास्ट ये फुल रैली डेली चार्ट के अंदर आपको निफ्टी में जैसे देखने को मिली, सेम एज इट इज वी आर सीइंग इन अ बैंक निफ्टी। दिस वाज द टॉप इन बैंक निफ्टी जो करीब 41,829 के आसपास लगा था।
on 25th of October 21. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर के अंदर 34,018 के आसपास का लो लगा है 20 दिसंबर का। अब आप देखिए ये लो लगा है। अब ये लो यहाँ पे क्यों लगा? ये यहाँ पर भी आप देखिए 34,100 के आसपास का लो है 28 जुलाई 2021। जो निफ्टी में हमने कंसोलिडेशन देखा था मई जून, सेम वैसे ही कंसोलिडेशन वी हैड सीन इन बैंक निफ्टी आल्सो। और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी का यहाँ पर भी बैंक निफ्टी का जो लो लगा है 33,930 के आसपास, यहाँ पर लो लगा है 34,300 के आसपास। दिस वाज द कंसोलिडेशन फेज जहां पे बैंक निफ्टी ने पॉज लिया था और उसके बाद वन वे रैली की शुरुआत हुई और हमने 41,000 तक के हाई देखे। इन अ करेक्शन बैंक निफ्टी ने वापस वो कंसोलिडेशन फेज था उसका लो टेस्ट किया और सेम लो के आसपास 100-200 पॉइंट्स हियर एंड देयर वहां पे लो लगा के इसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और घूमने की शुरुआत करी। 34,000 के आसपास के 20 दिसंबर को लो लगे। आज 5 जनवरी, इन 15 डेज जिसके अंदर 8 से 10 वर्किंग डेज आए होंगे, इनके अंदर बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स का मूव दिखा दिया। आज बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 37,860 का। सो सी द रैली इन द मार्केट, सी द मूव इन द मार्केट्स। अगर आप प्रॉपर टाइमिंग पे प्रॉपर स्टॉक प्रॉपर इंडेक्स को पकड़ लेते हैं तो कैसे आपको रैली खाने मिलती है। इन निफ्टी और बैंक निफ्टी के जरिए मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने का कोशिश किया। इसी तरह से अगर आप सेक्टरल इंडेक्स देखेंगे, you can check the metal index chart, you can check the metal index chart, you can check the IT index chart, you can check the PSU chart। सभी के अंदर ऐसा का ऐसा वन वे रैली हमने देखा है। इससे आप लोगों को यह समझना है कि अगर आप इसका प्रॉपर हेल्प लोगे चार्ट्स का तो आप किस तरह से पैसा बना सकते हो। चार्ट्स के अंदर देयर आर वेरियस पैरामीटर्स। नाउ आई विल टॉक समथिंग टेक्निकल्स ऑन चार्ट। चार्ट्स के अंदर देयर आर वेरियस पैरामीटर्स, देयर आर वेरियस टाइम होराइजंस, देयर आर वेरियस इंडिकेटर्स। ये सब के अपने अपने कंफर्ट जोन पे डिसाइड करता है, अपने अपने एक्सपीरियंस अपने अपने नॉलेज पे डिसाइड करता है कि किसको क्या देखना है, किसको क्या सही लगता है। सबकी स्टडी अलग अलग है। एक ही चार्ट एक टाइम पे एक को बाय लगेगा, एक को सेल लगेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ चार्ट्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मार्केट्स। हर एक की स्टडी अलग अलग है। तो अगर आप ऑलरेडी स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा। जो लोग नहीं स्टडी करते उनको सुनना होगा और उनको समझना होगा कि आप जब टीवी पे भी लोगों को देखते हैं या अलग अलग जगह लोगों को देखते हैं तो पीपल से बाय विद सो एंड सो स्टॉप लॉस, समवन विल से सेल विद सो एंड सो स्टॉप लॉस। सो हर एक की स्टडी अलग है, हर एक का होराइजन अलग है, हर एक का पैरामीटर अलग है, हर एक का स्टडी अलग है। बेस्ड ऑन दैट people give their opinion, people give their view. No one is 100% right. But the probability of going right जिसका ज्यादा होता है, you should always stick with that, or you should always see what is the probability of going right. अगर आप भी खुद स्टडी करते हैं तो आपको ये देखना है कि probability of right going कितना होगा। 100% right ना आप सही जा सकते हैं, ना मैं सही से जा सकता हूँ, ना कोई भी सही जा सकता है। 100% सही जाने का एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए और कोई जाएगा भी नहीं। बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग राइट इज बेटर, देन वी शुड स्टिक विद दैट स्टडी, वी शुड स्टिक विद दैट पर्सन, वी शुड स्टिक विद दैट चार्ट। वो ही आपको मार्केट से पैसा बना के देगा। I hope
यहाँ तक आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आया जो भी मैंने कहा, वो चार्ट्स को लेके, स्टडी को लेके, पैरामीटर्स को लेके। देवेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही ओके, है। तो मैं थोड़ा देर और बोलता हूँ क्योंकि कंटिन्यू बोल नहीं पा रहा हूँ। सर कोई दिक्कत नहीं सर, आपका ये पार्ट कवर हो गया। हम अगर आपको बोलने में, कंटिन्यूस बोलने में तकलीफ हो रही है तो हमारे व्यूअर्स के कई सारे आवाज नहीं आया देवेंद्र जी आपका। तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाते हैं सर। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसको करते हैं। उससे आपको क्या बीच में थोड़ा रेस्ट भी मिलता रहेगा। हाँ, एक्चुअली क्या है, गला बैठा हुआ तो कंटिन्यूअसली बोलने में Sure, खांसी sir. भी आ रही है और बोल नहीं पा रहा हूँ। जी जी जी। क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे सर, आप हमारे और मेंबर्स मुझे के भी लिए उसमें थोड़ा सा इतनी गैप मिल तबीयत जाएगा खराब होने बोलने के के लिए। बावजूद आप आए, उसके लिए बहुत बहुत पहले तो आपका शुक्रिया। और हमारे एक व्यूअर्स हैं विनोद जी भाटिया, उनका क्वेश्चन है सर, बैंकिंग की इतनी बड़ी रैली भी चल रही है, आपने अभी चार्ट के माध्यम से भी बताया कि पीएनबी बैंक इंडेक्स इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो पीएनबी नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बैंक शेयर रैली, व्हाई, how we identify that SBI will rise and PNB not? सुमित जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, आपका पीएनबी का सवाल मुझे मिला। आ रही है ना आवाज? जी सर, जी सर। जी, आपका पीएनबी का सवाल मुझे मिला। देखिए, ये ही रीड करना एक सर आप म्यूट है, सर आप म्यूट है। यही चीज देखना एक आर्ट है। यही चीज देखना एक आर्ट है कि कौन सा चीज चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ फंडामेंटल्स, यहाँ पे फंडामेंटल एक रोल प्ले करता है कि किसके फंडामेंटल सुधर रहे हैं। सो वी नीड टू रिव्यू अवर फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक और द पर्टिकुलर सेक्टर कि किसके फंडामेंटल्स रिव्यू हो रहे हैं। अगर आप पीएनबी का देखोगे तो इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अभी तक इतना सुधार देखने को नहीं मिला जो हमने सबसे बढ़िया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इनका देखने को मिला। और फंडामेंटल्स के बाद अगर हम टेक्निकल्स पे आते हैं तो टेक्निकल्स में अगर आप एसबीआई का चार्ट देखेंगे, अगर आप पीएनबी का चार्ट देखेंगे, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखेंगे, तो हम क्लियरली, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखाऊंगा अभी। देखिए, ये पीएनबी का चार्ट है। अब पीएनबी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने बेस बनाया है 26 से 28 रुपए के आसपास। अब अगर आप वहां से देखेंगे तो ये स्टॉक डबल हो चुका है और इसी फेज के अंदर लास्ट 1.5 साल के अंदर। लेकिन थोड़ा कंपेयर टू कैनरा बैंक ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि ये स्टॉक लोअर लेवल से जरूर डबल हुआ है लेकिन ये स्टॉक का रिटर्न इतना ट्रिमेंडस नहीं है जितना बाकियों का है। क्यों? एक तो इसके फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग, दूसरा टेक्निकल्स के अंदर इसके अंदर साइडवेज मूव हमको देखने को मिल रहा है। ये पिछले 1.5 साल के अंदर ऊपर जाता है 45, 48 तक करेक्शन दे देता है, फिर नीचे में 32, 35 तक आता है, फिर ऊपर जाता है 45, 48 तक, फिर करेक्शन दे देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन दे देता है। अब इस चार्ट के जरिए सबको ये समझना जरूरी है कि ये स्टॉक 45 से 48 के आसपास, जो कि मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, इसको देख के आपको समझ में आएगा कि ये चैनल का ब्रेकआउट जब भी इसके अंदर आएगा ये स्टॉक 55 रुपए से लेके 65 रुपए तक का मूव दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक का इमीडिएट हर्डल देखो, ये जो पहले के लो लगे थे ये वाले, वहां तक जाएगा जो कि 55 से 58 के आसपास बनेंगे। और ये जो टॉप बना है ये वाला जो कि 65 रुपए के आसपास है, वहां तक जाने का उम्मीद बनेगा। लेकिन उसके लिए ये स्टॉक को 45 से 48 रुपए का जोन ब्रेक करना होगा और वो ब्रेक करने के साथ साथ पॉजिटिव न्यूज फ्लो आना जरूरी है, तब ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा।
अब इसके साथ साथ हम एसबीआई का चार्ट देखते हैं। हुआ था तब इसका भाव होता था 150 रुपए के आसपास। 150 रुपए वाला स्टॉक अभी रिसेंट में जो हाई लगा है 540 का है, एंड नाउ इट्स कोटिंग एट अराउंड अप्रोक्स 500 लेवल्स। अब इस चार्ट में ये समझने लायक है कि ये जो रिसेंट के लोज जब लगे थे लॉकडाउन के पहले, वो 250 के आसपास के थे। अब 150 से जब इसने मूव करना स्टार्ट किया, जो मार्च में लोज लगे थे, वहां से इसने अप्रोक्सीमेटली ऊपर 230 तक के हाई लगाए, फिर करेक्शन दिया, और फिर जैसे ही 230 का लेवल टूटा दोबारा, जो कि इसने नवंबर 2020 के आसपास तोड़ा, उसके बाद स्टॉक ने वन वे मूव दिखाया और 400 पे जाके रुका। तो जब भी स्टॉक ने पॉज लिया, पॉज लेने के बाद वापस से हाई ब्रेक किया और ऊपर जा रहा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक अपना हर्डल ब्रेक करते जा रहा है। और एट द सेम टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एसबीआई के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, अनाउंसमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी आ रही है। ये चीजें चार्ट्स में भी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करती गई। वॉल्यूम्स आप देखोगे, वॉल्यूम्स प्ले मेजर रोल इन दी मार्केट्स। लोअर लेवल्स पे देखिए, वॉल्यूम्स के अंदर इजाफा देखने को मिलता रहा रेगुलरली, और ये ब्रेकआउट आते गया। ये एसबीआई ने अगर आप इसका ऑल टाइम डेटा देखेंगे तो ये इसका लाइफ टाइम हाई था जो उसने 2019 में बनाया था 370 के आसपास, वो इसने ब्रेक कर दिया। दिस शोज कि पीएसयू बैंकिंग में बाकी स्टॉक्स के कंपैरेटिवली इसने पहले तेजी पकड़ी, तो ये स्टॉक तेजी के अंदर है। टेक्निकल्स में एक सबसे बढ़िया चीज है जो आपको समझ में आएगी, जो आपको समझनी चाहिए, और आप लोग ने देखा भी होगा कि जब स्टॉक तेजी में होता है उसमें सब तेजी करते हैं, जब स्टॉक मंदी में होता है उसमें सब मंदी करते हैं, क्योंकि ये बेसिक फंडा है। अगर कोई चीज तेजी में है तो वो ऊपर जाती है। इंडिया में वैसे भी सेइंग है, चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को सलाम नहीं किया जाता है। तो सूरज जब चढ़ता है उसको सब सलाम करते हैं, तो जब तेजी में होती है तो उसको उस टाइम पे सब तेजी करते हैं, और उस टाइम पे ही तेजी करनी चाहिए। अगर आप चार्ट दिखाया अभी, ऐसे ही आप खुद चार्ट देख सकते हैं, या आप जिस भी ब्रोकिंग हाउस से जुड़े हैं उनके टेक्निकल एनालिस्ट या रिसर्च टीम से बात कीजिए। दे विल गाइड यू कौन सा स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, कौन सा साइडवेज में है, कौन सा मंदी में है। अब ये चार्ट आप देखोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा, जहां पे पीएनबी साइडवेज कंटिन्यूअसली तेजी दिखा रहा है। जहां पे हमने एसबीआई के अंदर ग्राफ ऊपर की तरफ जाते हुए देखा है, पीएनबी साइडवेज चल रहा है। दिस क्लियरली कि एसबीआई के अंदर अभी तक मोमेंटम बिल्डअप नहीं हुआ है, और बैंक ऑफ और पीएनबी के अंदर मोमेंटम अभी तक बिल्डअप नहीं हुआ है, और एसबीआई के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, और वो कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट जैसे ही ये 100 रुपए का लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद इसके अंदर और मोमेंटम बढ़ेगा, फिर और तेजी आएगी। अब ऐसे ही आप कैनरा बैंक का चार्ट देखिए, ऐसे ही कैनरा बैंक के अंदर हो रहा है। कैनरा बैंक के अंदर भी लो लगा के तेजी पकड़ी है, और तेजी पकड़ के 200 डीए में लेवल तोड़ दिया है। यानी इन चारों में अगर आप सबसे बढ़िया चार्ट देखोगे तो एसबीआई इज द नंबर 1, कैनरा बैंक इज नंबर 2, बीओबी नंबर 3, पीएनबी नंबर 4 एंड सो ऑन। ऐसे लिस्ट कंटिन्यू जाती जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये मूविंग एवरेजेस होती है जो आपको चार्ट्स पे डालनी चाहिए, और जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्रेंड तेजी में पकड़ रहा है, कौन सा नहीं पकड़ रहा है। एसबीआई सबसे ऊपर है, कैनरा बैंक 200 डीएमए तोड़ चुका है, बीओबी तोड़ने वाला है, और पीएनबी नीचे है। इस तरह से आपको चार्ट्स में पता चलेगा कौन सा स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है, कौन सा साइडवेज मोड में है, कौन सा करेक्शन मोड में है। ओवर टू यू देवेंद्र जी।
आपने बहुत ही अच्छे से हमारे व्यूअर्स को समझाया कि किस तरह से चार्ट को हमें रीड करना चाहिए, और वास्तव में बड़ा है ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि चारों बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, वर्किंग स्टाइल लगभग सेम है, बट फिर भी एक का प्राइस 5-4 गुना हो चुका है और एक का प्राइस आधा हो गया। जो 70 रुपए का पीएनबी आज भी 38 रुपए है, और 140-150 रुपए का जो एसबीआई आज 500 रुपए क्रॉस कर चुका है लगभग। तो रियली इट्स अ ब्यूटी ऑफ चार्ट। हमारे नेक्स्ट व्यूअर्स का क्वेश्चन है सर, वर्षा जी ने एक क्वेरी करी है सर ऑल पीपल टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। I had purchased NTPC in year 2007 at 192 per share, but even after 15 years, it has not given the desired return. बिल्कुल। तो वर्षा जी, आपने एकदम सही कहा, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपने सुना होगा, तो मैंने कहा था कि स्टॉक सिलेक्शन, टाइमिंग मार्केट्स में बहुत जरूरी है। जो प्रॉपर टाइमिंग कर पाएगा मार्केट्स के अंदर, जो प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन कर पाएगा, उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू अदर्स। ये तो आपने एनटीपीसी का एग्जांपल दिया। इतने सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, हो सकता है किसी ने आईटीसी लिया होगा। आप लोगों ने देखा होगा आईटीसी के ऊपर कितने मेम्स भी बने हैं, और आईटीसी के ऊपर जनरली लोगों ने कहा है 10 साल पहले भी 200 था, आज भी 200 है, 200 208 तक जाता है, वापस 200 तक आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है वर्षा जी, जो मार्केट के अंदर जब जिसका टाइम आएगा तब चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पीएसयू स्टॉक्स पिछले 10 साल से नहीं चले थे, लेकिन अब पीएसयू के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पीएसयू स्टॉक्स एक एक करके चाल दे रहे हैं। तो जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो स्टॉक क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये रिव्यू करते रहना जरूरी है। आपके माध्यम से मैं पूरे 250 लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट और फिक्स डिपॉजिट बहुत अलग अलग चीजें हैं। फिक्स डिपॉजिट में हम पैसा डाल के छोड़ सकते हैं 5 साल तक, 10 साल तक, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर हमको रिव्यू करते रहना जरूरी है अगर हमको अच्छा पैसा कमाना है और हमको औरों से ज्यादा पैसा कमाना है। जो स्टॉक आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसमें आपको रिव्यू करना चाहिए, या तो आपको एग्जिट करना चाहिए, या आपको ये समझना चाहिए कि उसमें आपको और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या आपको उसका साइकिल टर्न होने का वेट करना चाहिए। शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट टाइम साइकिल। शेयर मार्केट के अंदर देयर आर वेरियस सेक्टर, एग्जांपल बैंकिंग, फाइनेंस, मेटल, फार्मा, रियल एस्टेट एंड सो ऑन। ऐसे करके 10-15 सेक्टर है शेयर मार्केट के अंदर। हर सेक्टर हर साल नहीं चलेगा। गौर से सुनिएगा वर्षा जी और बाकी सब। हर सेक्टर हर साल नहीं चलेगा। अगर आप देखोगे, ये जो लास्ट 1.5 साल गया, उसके पहले 5 साल तक मेटल सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये जो लास्ट के 1.5 साल है, उसके अंदर मेटल सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। एक और एक एग्जांपल देता हूं। 2008 से 2018 तक रिलायंस ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। जिसने रिलायंस लिया होगा उसने अपना सर पीटा होगा कि मैंने ये रिलायंस क्यों ले लिया। लेकिन 2018 से 2021 तक इसने पिछले 10 साल की कसर निकाल दी। इसी तरह से मेटल सेक्टर ने पिछले 5 साल में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन लास्ट 1.5 साल में इसने 5 साल की पूरी कसर निकाल दी। कसर का मतलब जो टाइम लैग लोगों ने इन्वेस्ट करके वेस्ट किया या पॉज लिया या होल्ड किया, उनका पूरा रिटर्न आया। आपके सामने लाइव एग्जांपल है टाटा स्टील, 400 वाला स्टॉक 1200-1300 तक आ गया। आपके सामने लाइव एग्जांपल है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 30 रुपए 25 रुपए पे ट्रेड करता था, 125 रुपए पे आ गया। आप लोगों ने अगर मुझे टीवी पे सुना होगा, सेल में हमने स्लोगन भी दिया था, सेल को सेल नहीं करना। और जिन्होंने इसको सुन के होल्ड किया, उनको देखिए कैसी रैली मिली। तो ये शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस, शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट टाइमिंग।
टाइमिंग इसमें जिसने प्रॉपरली कैच करी वो कंपेयर टू अदर्स ज्यादा पैसा कमाएगा। तो एनटीपीसी के अंदर आपने इतना पेशेंस रखा है, अब आप थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। आने वाले दिनों में पीएसयू सेक्टर यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए, एनटीपीसी भी परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन बड़ा ब्रेकआउट अभी तक इसमें आया नहीं है। इसको जानने के लिए आपको रेगुलरली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट से रिव्यू लेते रहना होगा। और आगे अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करें तो ये जरूर ध्यान में रखें कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका रिव्यू लेते रहे एंड अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर पोजीशन साइजिंग या फ्रेश पैसा डालें। ओवर टू यू देवेंद्र जी। आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। इसमें एक सेक्टर और मैं ऐड कर दूं, फार्मा सेक्टर ने भी पिछले कई सालों से परफॉर्म नहीं किया था, और जब से कोविड आया तब से फार्मा सेक्टर इवन उनके म्यूचुअल फंड ने भी 100-200% रिटर्न जो है वो दिए हैं। तो रियली यही स्टॉक मार्केट की ब्यूटी के लिए यहाँ पे कई गुना रिटर्न भी मिलता है, कई गुना रिस्क भी है। तो एक हमारे व्यूअर्स हैं प्रीतेश जी, उनका सवाल है हुडको। सर, हुडको को आप कैसा लगता है, और क्या ये अब निवेश के लायक है? बिकॉज ये भी एक तरह से पब्लिक सेक्टर को ही डील करता है, फाइनेंस को डील करता है। तो आज जो आपने बताया कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज और बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज एक अच्छे बढ़त में है, और दूसरा डिविडेंड पेइंग ये भी अच्छा आ रहा है, तो आप हुडको पे अपना विचार है। हुडको स्टॉक का नाम लिया ना देवेंद्र जी आपने? जी सर, जी सर। देखिए हुडको के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, हुडको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हुडको लोअर लेवल से एक बाउंस बैक दिखा चुका है, लेकिन अभी तक इसमें बड़ा मूव नहीं बना है। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जैसे ही इसका नंबर आएगा ये स्टॉक भी चलेगा। मैं आपको अभी इसका टेक्निकल लेवल्स बता देता हूं। स्टॉक अभी 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो नीचे में सॉरी स्टॉक का जो नीचे में मेजर सपोर्ट बन रहा है 30 रुपए से लेके 35 रुपए के आसपास का बन रहा है। स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी जब ये 45 का लेवल तोड़ेगा। 45 का लेवल तोड़ने के बाद इसमें नेक्स्ट हडल बनेगा 55 रुपए का। ये दो हडल हुडको को ब्रेक करना जरूरी है विथ पॉजिटिव न्यूज फ्लो एंड विथ वॉल्यूम्स। दो लेवल विथ पॉजिटिव न्यूज फ्लो एंड विथ वॉल्यूम्स, अगर ये चीजों के साथ ये लेवल टूटते हैं तो हुडको के अंदर एक लॉन्गर टर्म का ब्रेकआउट आएगा और फिर ये स्टॉक बड़ा परफॉर्म करेगा। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आएगा हुडको इसी तरह से साइडवेज चलेगा, छोटा मोटा मूव 5-10% का ऊपर नीचे दिखाएगा और ऐसे ही ट्रेड करेगा। जिस तरह से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, जल्दी ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आना चाहिए। पॉजिटिव न्यूज का वेट करें और जो मैंने लेवल्स कहे उनका वेट कीजिए, फिर ये स्टॉक भी परफॉर्म करेगा। फिलहाल ये साइडवेज मोड के अंदर है, थोड़ा सा ये आराम वाली स्थिति के अंदर है, जल्दी इसके अंदर ब्रेकआउट आना चाहिए। नीचे के अंदर 30-35 का सपोर्ट है, ऊपर के अंदर 45 का पहला रेजिस्टेंस, 55 का दूसरा रेजिस्टेंस, ये दो लेवल के बाद बड़ा ब्रेकआउट। ओवर टू यू देवेंद्र जी। हमारे एक और व्यूअर हैं अविनाश कुमार अग्रवाल जी, योर व्यूज ऑन एनएमटीसी सर। तो मेरे ख्याल से पब्लिक सेक्टर पे तो आपका व्यू आ ही चुका है। बिल्कुल, देखिए मैंने अपन देवेंद्र जी अगर स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज लेने लग गए ना तो ये 2 घंटा भी अपने को कम पड़ने वाला है। यस यस। तो हम लोग लेकिन चलिए ये स्टॉक पे मैं ये स्टॉक जी बोलिए सर। अभिषेक जैन जी का क्वेश्चन है सर, हाउ टू जज फॉल्स ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकडाउन, रीड विद वॉल्यूम। राइट, तो एक पहले एमएमटीसी का आंसर कर देता हूं मैं। एमएमटीसी स्टॉक परफॉर्म करना चालू कर चुका है। लास्ट 1 साल के अंदर स्टॉक 15-20 रुपए से रैली करना स्टार्ट किया और स्टॉक 60 रुपए पे आ चुका है हाई लगा के, और अभी 45 पे है। यानी 1-1.5 साल के अंदर स्टॉक ने 5 से 6 गुना का रिटर्न दिया है। एमएमटीसी अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन सेक्टर तेजी के अंदर है और ये सेक्टर यहाँ से ऊपर का मुंह दिखाना चाहिए। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा क्वेरीज ले नहीं पाएंगे, तो आप लोग को अगर स्टॉक स्पेसिफिक कभी भी व्यूज या डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी हम अवेलेबल है, अदरवाइज आप हमारी टीम से कभी भी टच में रह सकते हैं चॉइस ब्रोकिंग के अंदर। अब जहां तक फॉल्स ब्रेकआउट वाला सवाल है, किसका सवाल था देवेंद्र जी? वो विशाल जी का। रीडर का नाम
एक मिनट, ठीक है। अभिषेक जैन जी, अभिषेक जैन जी। अभिषेक जी देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पता चलता है? फॉल्स ब्रेकआउट, you can come to know false breakout when the stock has given a resistance breakout, a pattern breakout, and not able to sustain above that level or below that level for 1 or 2 days also. कहने का मतलब एक स्पाइक दिया, स्पाइक देने के बाद नीचे आ गया, या नीचे का स्पाइक दिया और स्पाइक देने के बाद अगर वो चीज ऊपर आ गई और सस्टेन नहीं करी, दैट मीन्स दैट इज ए फॉल्स ब्रेकआउट। अगर कोई भी चीज का फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा तो वो पैटर्न ब्रेकआउट, ट्रेंड ब्रेकआउट, लेवल ब्रेकआउट के बाद वो सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट करेगा या वन वे मूव दिखाएगा। बहुत बार टेक्निकल्स के अंदर फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, वो रीड करना और समझना बहुत जरूरी है। सी आज की डेट में अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं या मैं 15 साल पहले की बात करूं, जब टेक्निकल्स देखता था तब टेक्निकल देखने वाले गिने चुने लोग होते थे हिंदुस्तान के अंदर या फिर ब्रोकिंग हाउसेस के अंदर। आज की डेट में हमारे जैसे लोगों ने या मार्केट अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई कि अब बच्चा बच्चा टेक्निकल एनालिसिस समझने लग गया है, देखने लग गया है। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से टेक्निकल हो चुका है। टेक्निकल रीडिंग करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, तो आप लोग ये ट्रैप में ना आए, आप लोग प्रोफेशनल के थ्रू ही टच में आए। अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है, ये टेक्निकल सपोर्ट लेवल है, ये आज की डेट में हर किसी को दिखते हैं। जो टेक्निकल चार्ट्स पे देख रहा है उसको दिख रहा है, और कोई भी आपको बोल देगा कि इसका ये रेजिस्टेंस है, इसका ये सपोर्ट है। तो बहुत बार उसकी वजह से भी टेक्निकल ब्रेकआउट्स आते हैं। बुलिश में भी, बेरिश में भी जो फॉल्स होते हैं, जो एक दिन के लिए आते हैं, एक घंटे के लिए आते हैं, या 1 से 2 दिन के लिए आते हैं और फिर वापस से रिवर्स हो जाते हैं। तो ये आपको इनडेप्थ नॉलेज और इनडेप्थ स्टडी के साथ ही पता चलेगा। मैं आपको इन शॉर्ट ये बता सकता हूं अभिषेक जी कि जब भी ऐसा टेक्निकल ब्रेकआउट आए तो आप ये देखें कि वो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी पैटर्न ब्रेकआउट या जो भी ट्रेंड लाइन या जो भी लेवल ब्रेकआउट आपने देखा है, उस ब्रेकआउट के ऊपर उसको सस्टेन करना जरूरी है, वॉल्यूम्स आना जरूरी है, कंटिन्यूसली हायर हाई या हायर लो बनाना जरूरी है। उस सेक्टर या उस स्टॉक का उस टाइम पे पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी होना चाहिए उस पैटर्न ब्रेकआउट से रिलेटेड, तब जाके आपको वो कन्विंसिंग और रिलायबल हो जाएगा कि ये ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के ऊपर आपको रिलाय करना है। देन यू कैन ऐड योर पोजीशंस, क्योंकि जब ब्रेकआउट आता है उसके बाद एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। ओवर टू यू देवेंद्र जी। आई थिंक देवेंद्र जी कुछ ही क्वेश्चन और लेने चाहिए। हाँ ठीक है सर, 1 या 2 क्वेश्चन लेके आज हम सारे दर्शकों से माफी चाहेंगे कि चूंकि सुमित जी का तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हम उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, हम उन्हें बहुत जल्दी फिर एक गुलशन जी जोशी, घनश्याम जी जोशी हमारे काफी लर्नड व्यूअर हैं, कल भी उनकी बड़ी टेक्निकल क्वेरी थी, आज भी उन्होंने क्वेरी करी है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर स्टैंडर्ड पैरामीटर इज 7.3, in your chart you use 3.10 or 10.3, what is the difference? See, ये सब डिफरेंस टाइम से पता चलते हैं। अगर आपको छोटे ट्रेड्स चाहिए, फास्ट ट्रेड चाहिए, तो आपको छोटे टाइम होराइजन के पैरामीटर्स यूज करने चाहिए जिसके अंदर जल्दी ब्रेकआउट आता है, जल्दी एग्जिट मिलती है। अगर आपको बड़ा मूव चाहिए तो आपको बड़े पैरामीटर्स यूज करने चाहिए जिसके अंदर आपको बड़ा मूव या बड़ा ट्रेंड खाना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 10 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज। अब 200 डे मूविंग एवरेज का रिलायबिलिटी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 महीने के लिए नहीं होता है। जनरली 200 डे मूविंग एवरेज जब आता है वो 6 महीने का ब्रेकआउट है। वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आए या नीचे की तरफ आए, पूरा ट्रेंड चेंज होता है और कुछ महीनों के लिए वैसा ही ट्रेंड चलता है। इसी तरह सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स ये आपको बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट इंडिकेटर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, चार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर स्टैंडर्ड पैरामीटर 7.3 यूज किया जाता है, जिससे आपको एक एक्यूरेसी, एक लेवल प्रॉपर मिलता है। बट अगर किसी को दूसरा पैरामीटर चेंज करना है तो बैक टेस्टिंग के साथ जाना चाहिए, प्रॉपर स्टडी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सारी स्टडी और सारे ट्रेंड हर वक्त हर टाइम मार्केट्स के अंदर काम नहीं करते। ओवर टू यू देवेंद्र जी।
एक और लास्ट क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे कि अभी जो है कई सारी जो टेक कंपनीज और जो स्टार्टअप्स और न्यू कंपनीज जो है जहां बिजनेस मॉडल कुछ भी नहीं है और लॉस की बैलेंस शीट होती है और उसको 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन होता है, तो आज की डेट में काफी इस तरह के इशू आ रहे हैं। तो हमारे व्यूअर जानना चाह रहे हैं कार ट्रेड, पेटीएम, नायका, ये सारे जो हैं, इनमें आप किस तरह से हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्या देखना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी देखिए, मैं स्टॉक स्पेसिफिक अभी इन पे किसी के भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इन वाला समय ही बताएगा। इनमें मैं यही चीज बोल सकता हूं कि आप नेक्स्ट जनरेशन की जो ये चीजें आ रही है, आईटी कंपनीज आ रही है, टेक कंपनीज आ रही है, ऑनलाइन कंपनीज जो आ रही है, इनके अंदर आप फायदा उठाए। जिस सेक्टर में या जिस स्टॉक में आपको लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर अच्छा है और जो आने वाले 5-10 सालों तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला है, उनके अंदर आप निवेश कर सकते हो। बट आप फॉल के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। जब भी मार्केट गिरेगा, इन स्टॉक्स के अंदर 25 से 50% का फॉल कभी भी आ जाएगा और वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हाईली ओवर वैल्यूड है। तो इनमें करेक्शंस भी ऐसे ही आते हैं। एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं पेटीएम का। आप पेटीएम देखो तो जो लिस्टिंग है उससे अच्छा खासा करेक्शन दे दिया। दैट डज नॉट मीन कि स्टॉक खराब है, कंपनी खराब है। कंपनी इज गुड। अब इन लेवल्स के अंदर ये बाय बनता है। तो ऐसे और भी जो स्टॉक्स लिस्ट हुए हैं, मार्केट में जब करेक्शन होगा तब उनके अंदर भी फॉल आएगा। लेकिन जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप अगर लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो आपको एक तो ध्यान रखना है फंडामेंटल्स, दूसरा आपको ध्यान रखना है टेक्निकल्स, तीसरा आपको ध्यान रखना है टाइमिंग और पैसा, किस टाइम पे आपको पैसा डालना है और आपको रेगुलरली पैसा डालते रहना है। तो अगर आप रिव्यू करके उसके अंदर प्रॉपर डालते रहेंगे पैसा और प्रॉपर चर्निंग करते रहेंगे तो आपका कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, आपको ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट भी आएगा। बट सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि इन सब हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, ज्यादा ओवर लिवरेज ना रहे, थोड़ा सा करेक्शन मोड में आए तब इनमें खरीदे। या ये स्टॉक इन्हीं लेवल पे अगर कंसोलिडेट करे तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये स्टॉक, शेयर मार्केट इस वैल्यूएशन को पचा रहा है और यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जाने को तैयार है। तो ये चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही पता चलेगी एंड विद प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड गाइडेंस के साथ ही पता चलेगी। आप प्रिपेयर्ड रहे कि इनके अंदर करेक्शन आएगा, जब भी मार्केट गिरेगा तब उस करेक्शन में आपको खरीदारी करनी है, प्रॉपर लेवल्स पे, प्रॉपर टाइमिंग पे, प्रॉपर रिव्यू लेके। जी देवेंद्र जी। एक आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे। जैसे अभी कोविड की जो ओमिक्रॉन की लहर लगभग अब आ ही चुकी है, दस्तक दे चुकी है, और जिस तरह से 10 दिन में, पिछले महीने भर में जो केसेस बढ़े हैं बॉम्बे में, जिस मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी का जो आखिरी सप्ताह है और फरवरी का जो महीना है काफी टफ होने वाला है। भगवान करे कि हम इससे बड़ी आसानी से निकल जाएं। बट अगर हम जिस तरह से मार्केट फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके बिहेव करता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो थर्ड वेव जो आने वाली है उसको मार्केट डिस्काउंट कर चुका है या? देवेंद्र जी, अगर शेयर मार्केट की बात करेंगे, मेरे को तो लगता है शेयर मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, क्योंकि जो करेक्शन आई 10 से 15% की, उस टाइम पे कोई भी रीजन नहीं था, कोई भी लॉजिक नहीं था, कोई भी न्यूज नहीं था। मार्केट्स में वन वे रैली देखने को मिल रही थी, एक रिएक्शन रिक्वायर्ड था, एक प्रॉफिट जो हमको देखने को मिल चुकी है। मेरा रीडिंग, जिन लोगों ने भी मुझे टीवी पे सुना होगा पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, हालांकि मैंने थोड़ा कम बोला गला खराब होने की वजह से, लेकिन जब जब मैंने बोला तब तब मैंने यही बोला है, वी आर एक्सपेक्टिंग न्यू लाइफ टाइम हाई लेवल से इंडेक्स, और न्यू लाइफ टाइम हाई लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर गया और थोड़ा भी पॉजिटिव ट्रिगर्स आया तो हम 20 से 21,000 के लेवल देखेंगे। मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि मार्केट्स में जब जब करेक्शन आती है, जो आएगी आगे भी आएगी, उस करेक्शन में आप लोग को घबराना नहीं है। आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है और प्रॉपर अच्छे सेक्टर्स पे और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना है। अब मेरे को लगता है जहां तक कोविड के थर्ड वेव का सवाल है, ऑलमोस्ट आ चुकी है, ग्लोबली सब जगह हिट आ चुका है। इंडिया में भी 10,000 केस मुंबई जैसी सिटीज में डेली के आ रहे हैं, बाकी जगह भी आ रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट थर्ड वेव पूरी तरह से हिट आ चुकी है। एक तो पर्सनल लेवल पे सबको सलाह रहेगी, बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा। मैंने सेकेंड वेव में भुगता है,
मैं 15 दिन हॉस्पिटल में था, 1.5 महीने तक मैंने 24 घंटे घर पे ऑक्सीजन लिया है, एंड आज भी मुझे वीकनेस है और मेरा पूरा आफ्टर कोविड इफेक्ट की वजह से अभी तक रिकवरी चल रही है। आप लोग सबसे, जितने लोग, सबसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। अपनी फैमिली को, अपने जान पहचान वाले को बोलिए मास्क लगा के रखे, सैनिटाइज करके रखे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जिसके ऊपर भी ये हिट आएगा उसको बहुत बड़ा हिट आता है। अब जहां तक ये थोड़ा पर्सनल मैसेज था, सॉरी बीच में मैं भावनाओं में बह गया। जहां तक शेयर मार्केट के अंदर मेरे को ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, आप लोग को निवेश करते रहना चाहिए, आगे भी कीजिए, और जिन्होंने कर रखा है वो लोग प्रॉपर लेवल्स का यूज करते हुए राइड करें, क्योंकि अभी यहाँ से शुरुआत हुआ कहने के अंदर पैसे के अंदर देखेंगे, और अभी तो प्री बजट रैली भी आना बाकी है, तो बहुत जल्दी मार्केट एक अच्छा सरप्राइज ऊपर की तरफ देना चाहिए। तो सर आपके इस पूरे जो आज आपका जो डेलिब्रेशन था, आंसर का जो सेशन था, उससे हमें ये लगा कि तो हमारे व्यूअर्स को एक चीज तो पता लगी कि अभी जनरली जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा, बट थर्ड वेव ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, और अब मार्केट जो है देख रहा है रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, तो रिजल्ट सीजन को की तरफ आगे बढ़ेगा, और रिजल्ट के बाद तुरंत बाद बजट आने वाला है, तो रिजल्ट और बजट पे मार्केट का ध्यान चला गया है। तो मेरे ख्याल से चूंकि आज सुमित जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, ये तो उनका डेडिकेशन और उनका जो हम लोगों से जो स्नेह है कि उन्होंने कमिट किया था, तो वो उसके बावजूद वो आज यहाँ आए इतने शॉर्ट, काफी तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया कि किस तरह से हमें चार्ट देखना चाहिए और किस तरह से हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो सर मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, और जो 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 ट्रेजेडी आपके साथ सेकेंड वेव में हुई, वो हमारे व्यूअर्स और उनको ना हो उसके लिए जो आपका मैसेज है वो सभी तक उन्होंने आपने डायरेक्टली भी पहुंचा दिया। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग भी घर में बैठें, घर बैठकर इसी तरीके से नॉलेज गेन करते रहें और अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को निभाएं। तो नाउ हम आज प्रोग्राम को थोड़ा सा जल्दी कंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज आवर स्पीकर जो है उनकी तबीयत को मैं और ज्यादा उनको परेशान नहीं करना चाहता। नाउ आई रिक्वेस्ट अतुल अग्रवाल जी सर for formal vote of thanks. Thank you very much, CA Devendra Somani ji, Chairman CP Committee of CARC and the past Chairman of CARC. The session was really wonderful, and the way Shri Sumit Bagadia ji has explained the insight of the share market is really amazing. In spite of the fact that he's not well, but still his dedication and the way he performed during this last, rather I must say he did a batting in last 1.5 hours, and ऐसा लग रहा था कि जैसे धोनी बैटिंग कर रहा हो क्रिकेट ग्राउंड में, इसी तरीके से सुमित बागड़िया जी बैटिंग कर रहे थे, in spite of the fact he is not well, suffering from still cough cold infection. I believe ये सब पोस्ट कोविड इम्पैक्ट्स है जो सुमित जी ने बताया, और उन्होंने एक हम सब के लिए एक मैसेज भी दिया कि भाई चूंकि थर्ड वेव ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम सबको बड़ा ध्यान रखना है, और अपना भी ध्यान रखना है, और अपने आसपास में जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है। और आप सभी जैसा कि जानते हैं, हमारे जो CIRC के जितने भी मेंबर्स हैं, सेकेंड वेव में सबने बड़ा डेडिकेटेडली कोविड टास्क फोर्स चलाया और एक दूसरे की मदद की। मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसी इमरजेंसी इस बार वापस थर्ड वेव में आती है, तो मेरे जितने भी मेंबर यहाँ प्रेजेंट हैं और उसके अलावा बाकी के जितने मेरे CIRC के मेंबर हैं, वापस से अपन उसी सेवा भाव से अपने मेंबर्स के लिए, मेंबर्स की फैमिलीज के लिए, और अपने आसपास में जितने भी हैं, रादर मेरे को ये कहना चाहिए कि अपने समाज के लिए हम लोग दिन रात एक करके वापस से कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हम सेकेंड वेव में कोविड से लड़े थे, इस वेव में भी हम कोविड से लड़ेंगे। And definitely on behalf of CIRC, I am really thankful to Shri Sumit Bagadia ji, who has taken out his valuable time in spite of the fact he is not well and feeling difficulty while he is speaking. So I am really thankful on behalf of CIRC. I would like to extend my sincere gratitude, sir.
अभी चूंकि हम लोग वर्चुअली मिल रहे हैं तो इसलिए हम आपको अभी कोई किसी मोमेंटो से सम्मानित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए हमारे हृदय में जो जगह है वो एक बहुत ही अनमोल जगह है और मैं समझता हूँ हम अपने हृदय की गहराइयों से आपका पुनः धन्यवाद करते हैं. आई एम रियली थैंकफुल टू द चेयरमैन CIRC. आई एम थैंकफुल टू चेयरमैन NIRC who was present here as a chief guest in the today's session, and the past chairman C. Harish Chaudhary ji. I am thankful to C. Shashikant Chandrakar ji, Secretary CIRC, and I am thankful to C. Devinder Sumani ji, who is taking out so much time and running this series from 1st of January, and this series will continue till 9th of January. And I am thankful to the attendees also, because without attendees, organizing any program is really a big challenge. And I'm happy to see that the number of attendees are increasing day by day, and as it has been announced today by the NIRC chairman also, that he is also going to populate this program in NIRC. So I'm sure from tomorrow onwards there may be the strength, maybe 400 members may be participating in this particular program. With these words, I would like to say once again, thanks to each one of you. I stay safe, stay healthy, and as suggested by Sumit Bagadia ji, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है, मास्क आपको यूज करना है, हैंड वॉश बार बार करना है, क्योंकि ये जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव में जो स्प्रेड है, स्पीड ऑफ स्प्रेड इज लाइक एनीथिंग. सेकेंड वेव में हम लोगों को जो डिफिकल्टी थी, स्प्रेड की स्पीड उतनी तेज नहीं थी, लेकिन हम लोगों को डिफिकल्टी आने से पता लग रहा था. लेकिन थर्ड वेव में अगर आप एसिम्प्टोमेटिक भी हैं तो भी शायद आपको पता ना लगे, बट आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं. तो वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है. और कल ही मैं एक न्यूज देख रहा था, शायद एक हमारा बूस्टर डोज भी ऑलमोस्ट अप्रूवल स्टेज पर है, और मैनकाइंड हैज कम अप विद मेडिसिन आल्सो. इन द टाइम टू कम, आई एम जस्ट क्रॉसिंग माय फिंगर that maybe in another next 10-15 days time we would be having medicine also for treatment of COVID. And it was there in the news that it may be a first medicine especially for COVID where there is a 5 days course. So I'm sure we all would be taking care of each other, and we would be taking care of in all respect. Thank you very much once again. I don't want, I can't end the session before extending my thanks to my Kanpur office who are arranging all these logistics. So once again, thank you very much for each one of you. Thank you. So Thank you very much. Hands up. Sir, end कर दें? Yeah, end कर दीजिए.